special theory of relativity. Special theory of relativity. The theory of relativity is concerned with the way in which observers who are in state of relative motion describe physical phenomena. Now, physical phenomena, different physical phenomena discuss किए जाते हैं by using the theory of relativity. और इसमें हम कंसिडर करते हैं the physical quantities. इन फिजिकल क्वांटिटीज में आ जाएंगी स्पीड, मास, लेंथ, टाइम। ये हम तमाम फिजिकल क्वांटिटीज को रिलेटिव यानी अपने डिफरेंट फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस के अकॉर्डिंग इसको स्टडी करेंगे। अच्छा, डिफरेंट थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की बेसिकली टू टाइप्स हैं, general theory of relativity and special theory of relativity. For the general theory of relativity, it is defined as it is a branch of theory of relativity which deals with non-inertial or accelerated frame of reference. यानी इसमें आपकी non-inertial यानी accelerated frame of references होंगे जिसमें हम कंसीडर करेंगे जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। अब इसमें रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो कि एक्सेलरेटेड बॉडीज हैं, एक्सेलरेटेड मोशन है, उनको डिस्कस किया जाता है इन जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। व्हाइल इन स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, special theory of relativity, it is a branch of theory of relativity which deals with inertial frame of reference. This theory treats problems involving inertial or non-accelerating frame of reference. यानी जो accelerating with a uniform speed move कर रहे हैं relevant to each other, उन frame of reference के अंदर कोई भी event हो रहा है, किसी भी physical quantity को आपने measure करना है, वो तमाम जो event आप measure करेंगे वो measure करेंगे by using special theory of relativity. अच्छा, this special theory of relativity was put forward by Einstein in 1905 और इसमें कंसिडर किया था कि इन स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ग्रेविटेशनल फील्ड डज नॉट प्ले एनी पार्ट। इसमें ग्रेविटेशनल फील्ड को कंसिडर नहीं किया जाता है क्योंकि हम डिफरेंट टू बेसिक पोस्टुलेट्स स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के दिए हुए थे जो कि मेंशन हुए हैं इसका। The laws of physics are the same in all inertial frames. Those laws which were given by the Newton. हम कहते classical physics में जो laws हैं, these are the laws which were given by the Newton. So all laws of physics are the same in inertial frame of reference. First postulate was that. Second is speed of light is a universal constant quantity. The speed of light in space और ये जो होगी वो सेम ऑब्जर्व किया जाएगी इन रिगार्डलेस ऑफ एनी स्टेट ऑफ मोशन और रिलेटिव मोशन। स्पीड ऑफ लाइट क्वांटिटी जो है वो एक यूनिवर्सल कांस्टेंट है एंड इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मोशन ऑफ द सोर्स ऑफ लाइट। First of all, if we give an explanation of first postulate, the first postulate is the generalization of the fact that all physical laws are the same in frames of reference moving with uniform velocity with respect to one another. यानी with uniform velocity, non-accelerated frame of reference है means कि जो भी bodies move कर रही हैं, एक या एक से ज्यादा जो भी bodies हैं और जिसमें एक दो या दो से ज्यादा फ्रेम ऑफ रेफरेंस में वो लाई कर रही हैं, वो मूव कर रही है विद यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर वो मूव करेंगे। इफ द लॉज ऑफ फिजिक्स वर डिफरेंट फॉर डिफरेंट ऑब्जर्वर इन रिलेटिव मोशन, द ऑब्जर्वर को डिटरमिन फ्रॉम दिस डिफरेंस दैट which of them are stationary in space and which of them are moving. यानी अगर ऑब्जर्वर, अगर ये लॉज ऑफ फिजिक्स ये क्यों नेसेसरी है कि फर्स्ट पोस्टुलेट देना कि लॉज ऑफ फिजिक्स विल बी द सेम, ये इसीलिए नेसेसरी है कि अगर लॉज ऑफ फिजिक्स डिफरेंट होंगे तो अगर डिफरेंट फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस में ऑब्जर्वर्स मौजूद हैं उनके लिए डिटरमिन करना डिफरेंस कि कोई जो है फ्रेम ऑफ रेफरेंस इन स्टेट ऑफ मोशन है या कोई इन स्टेट ऑफ रेस्ट है, वो डिटरमिन करना, डिस्टिंग्विश करना डिफिकल्ट हो जाता है। But such a distinction does not exist. So this postulate implies that there is no way to detect absolute uniform motion. Although postulate 1 कहते हैं कि हमारे laws of physics हैं और वो हम apply करते हैं ताकि हम different observer की relative motion को
और स्टडी करते हैं। लेकिन ये भी एक कोई एग्जैक्ट तरीका नहीं है कि जिससे आप एक एब्सोल्यूट यूनिफॉर्म मोशन की क्वांटिटी को डिटरमिन कर सकें। The second postulate is states an experimental fact that the speed of light is there. एक्सपेरिमेंट भी परफॉर्म किया गया कि रिगार्डलेस ऑफ द रिलेटिव मोशन, रिगार्डलेस के आपका जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस एट द स्टेट ऑफ रेस्ट है, ये मोशन में है, ये स्पीड ऑफ लाइट ऑब्जर्व्ड बाय डिफरेंट ऑब्जर्वर लाइंग इन डिफरेंट फ्रेम ऑफ रेफरेंस, उन्होंने इसको एक यूनिफॉर्म कांस्टेंट दैट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड डिटरमिन किया। और इसकी ये जो आपके सिंपल कॉन्सेप्ट है, ये हमारे स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ऑफ आइंस्टाइन स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। अब इनके डिफरेंट फिनोमेना को स्टडी करते हुए जब हम रिलेटिव फ्रेम ऑफ रेफरेंस को स्टडी करते हैं, तो बाय स्टडिंग द स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी हमने डिटरमिन किया डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी। फर्स्ट ऑफ the time. The time was studied by the classical mechanics, the classical physics. हम क्वांटिटी ऑफ टाइम को कांस्टेंट कहते हैं। आइदर बॉडी मूव कर रही है या एट द स्टेट ऑफ रेस्ट है, ऑब्जर्वर मूव कर रहा है एट द स्टेट ऑफ रेस्ट है, वो सेम टाइम मेजर करेगा। लेकिन अकॉर्डिंग टू द स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, टाइम इज नॉट एब्सोल्यूट कांस्टेंट, इट डिपेंड्स अपॉन द मोशन ऑफ द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अभी कंसीडर करते हैं कि सपोज एन ऑब्जर्वर इज स्टेशनरी इन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, कंसीडर कर रहे हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है और ऑब्जर्वर उसमें स्टेशनरी है एट द स्टेट ऑफ रेस्ट है विद रिस्पेक्ट टू द इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, और वो मेजर करता है टाइम। टाइम मेजर करता है बिटवीन द टू इवेंट्स इन दिस फ्रेम। उस इनर्शियल फ्रेम में वो टू टाइम्स को मेजर करता है। इवेंट्स, दो इवेंट्स, कोई भी इवेंट हो रहे हैं और उन इवेंट्स का टाइम वो मेजर कर रहा है। लेट्स से कि टी नॉट उसने मेजर किया इज नोन एज द प्रॉपर टाइम, वो कहते हैं प्रॉपर टाइम, और यू कैन से एज अ रेफरेंस टाइम। If the observer is moving with respect to the reference frame of reference of events with velocity v, the measured observer would not be t naught but it would be t। ये देखा गया कि अगर एक दो ऑब्जर्वर हैं, एक ऑब्जर्वर जो एट द स्टेट ऑफ रेस्ट है विद रिस्पेक्ट टू इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, वो मेजर करता है, दो इवेंट्स हो रहे हैं इसी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। जो ऑब्जर्वर एट द स्टेट ऑफ रेस्ट है वो मेजर करता है इस इवेंट के टाइम को विद टी नॉट और उसको प्रॉपर टाइम कहते हैं। और एक और ऑब्जर्वर है जो विद रिस्पेक्ट टू इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस मोशन में है और वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी v के साथ मूव कर रहा है। अब वो जब यूनिफॉर्म वेलोसिटी v के साथ मूव कर रहा है तो उसके लिए जो टाइम वो मेजर कर रहा है, इट इज इक्वल टू t एंड इट्स वैल्यू वाज ऑब्जर्व्ड टू बी t नॉट डिवाइडेड बाय √1 माइनस v स्क्वायर ओवर c स्क्वायर। अब ये जो क्वांटिटी है, इसमें ये जो आप क्वांटिटी देख रहे हैं, ये वाली क्वांटिटी √1 माइनस v स्क्वायर ओवर c, इट इज ऑलवेज लेस देन 1। यानी आपकी ये जो क्वांटिटी है, इट इज ऑलवेज लेस देन, सो द t इज ग्रेटर देन t नॉट। हमेशा ये ऑब्जर्व किया एक्सपेरिमेंटली, ये ऑब्जर्व किया गया कि ये जो इसके डिनोमिनेटर में क्वांटिटी है, ये आपकी हमेशा लेस देन 1। अब लेस देन 1 कितना है, क्योंकि 1 में से ये माइनस हो रहा है और 1 में से माइनस हो रहा है। और दूसरी ये चीज क्या है कि ये जो है दिस इज द रिलेटिव स्पीड एंड c is the speed of light, so nobody can reach the speed of light। अगर वो स्पीड ऑफ लाइट से मूव नहीं कर सकती तो ऑब्वियसली ये v जो क्वांटिटी है, इट इज मच मच लेस देन एज कंपेयर टू द स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, तो इससे हम ये कंसीडर करते हैं कि आपका जो v है, हम यहाँ पे ये कंसीडर करेंगे कि v इज मच मच लेस देन एज कंपेयर टू द स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, ऑब्जर्वेशन। अब ये अगर स्पीड ऑफ लाइट से कम है, ये आपको उसमें बड़ा है, तो ये जो क्वांटिटी होगी, ये क्वांटिटी जो होगी, इट विल बी ऑलवेज लेस देन 1। अगर ये ऑलवेज लेस देन 1 है और ये डिनोमिनेटर की फॉर्म में है, तो हम ये कहेंगे कि इस केस में हम कंसीडर करेंगे कि जो t है, the time observed by the observer which is in relative motion with respect to inertial frame of reference, t वो टाइम जो है वो मेजर जो करेगा, it will be
larger than the observer which observes the time which is at state of rest with the reference to, यानी वो सेम इवेंट है। एक ऑब्जर्वर है जो कि एट द स्टेट ऑफ रेस्ट वो टी नॉट टाइम मेजर कर रहा है और उसको हम कहते हैं प्रॉपर टाइम, और एक ऑब्जर्वर है जो एट द स्टेट ऑफ मोशन है विद रिस्पेक्ट टू द इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, वो टाइम ज्यादा मेजर कर रहा है। इसका मतलब है कि जो ऑब्जर्वर एट द स्टेट ऑफ मोशन है विद रिस्पेक्ट टू इनर्शियल फ्रेम है वो डिलेड टाइम मेजर कर रहा है। टाइम डिलेशन यानी उसका जो इवेंट का टाइम ड्यूरेशन है वो ज्यादा उसने मेजर किया, उसने स्ट्रेच हो गया, उसका हैज डिलेड और स्ट्रेच ड्यू टू रिलेटिव मोशन ऑफ द ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर के रिलेटिव मोशन विद रिस्पेक्ट टू इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस वो आपका वो टाइम जो है वो इंक्रीज हो गया। दिस इंस्टॉलिशिंग ये हैरत अंगेज तौर पर रिजल्ट जो है वो हम तमाम टाइमिंग और इवेंट्स के प्रोसेस पे अप्लाई करते हैं, और जब हम ये अप्लाई करते हैं तो हम ये डिटरमिन करते हैं कि अगर आपका इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिहाज से ऑब्जर्वर जो है इन रिलेटिव मोशन है तो इट विल ऑब्जर्व ऑल द फिजिकल केमिकल एंड बायोलॉजिकल प्रोसेस विद टाइम डिले। यानी जो एजिंग का प्रोसेस है, अगर एक बॉडी एट मोशन है विद अ हाई स्पीड तो उसमें एजिंग का प्रोसेस जो है वो डिलेड हो जाएगा, यानी जो मेजर्ड हो रहा है वो डिलेड होगा। जो एट द स्टेट ऑफ रेस्ट मेजर कर रहा है टाइम इट इज द प्रॉपर टाइम, जबकि जो ऑब्जर्वर विद रिस्पेक्ट टू मोशन मेजर कर रहा है वो प्रॉपर टाइम नहीं है, वो डिलेड या स्ट्रेच टाइम। तो एक फिजिकल क्वांटिटी के बाद हम स्टडी करते हैं स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और लेंथ। लेंथ भी एक फिजिकल क्वांटिटी है। अब लेंथ को मेजर करने के लिए the distance from Earth to star measured by an observer in a moving spaceship would seem smaller than the distance measured by an observer on Earth. It means that if you are in motion relative to 2 points that are fixed distance apart, the distance between the 2 points appears shorter than if you were at rest relative to them. वो कहते हैं कि अगर आपने कोई डिस्टेंस फॉर इंस्टेंस अगर मेजर किया गया डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द स्टार, तो एक ऑब्जर्वर जो कि मूविंग स्पेसशिप में है इट विल ऑब्जर्व लेस लेंथ, यानी उसके लिए शॉर्टर वो डिस्टेंस जो है वो मेजर करेगा वो स्मॉलर होगा एज कंपेयर टू एन ऑब्जर्वर विच इज एट द स्टेट ऑफ रेस्ट on lying on which is present on at the earth at the state of rest वो है with respect to the frame of reference। तो जो मोशन रिलेटिव मोशन है उस मोशन की वजह से जो ऑब्जर्वर है रिलेटिव मोशन की वजह से ऑब्जर्वर स्मॉलर लेंथ मेजर करेगा, शॉर्टर लेंथ मेजर करेगा एज कंपेयर टू द ऑब्जर्वर विच इज एट द स्टेट ऑफ, और इस इफेक्ट को हम कहेंगे दिस इफेक्ट इज नोन एज लेंथ कॉन्ट्रैक्शन। अच्छा, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन इट हैपेंस ओनली अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन एंड नो सच कॉन्ट्रैक्शन वुड टेक प्लेस परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। अब ये ऑब्जर्वेशन हुई कि अगर आप मेजर कर रहे हैं लेंथ को, तो देखिए लेंथ मेजर करते हैं आपके पास कोऑर्डिनेट्स कौन से एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट्स। अब एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट्स हैं when the three coordinates are perpendicular to each other। जब ऑब्जर्वेशन लेते हैं तो लेंथ कॉन्ट्रैक्शन इज ओनली मेजर्ड along the डायरेक्शन ऑफ द मोशन। जिस एक्सिस पे वो मूव कर रहा है उसी डायरेक्शन में लेंथ कॉन्ट्रैक्शन होगी, अदर डायरेक्शन में लेंथ कॉन्ट्रैक्शन आपको डिटरमिन नहीं होगी। अब ये कंसीडर करते हैं कि जो ऑब्जर्वर at the state of rest with respect to the frame of reference, it measures the proper length, और proper length को वो measure करता है, it is measured to be L0। ठीक है, L0 उसको measure करता है, जबकि जो observer at the state of motion है वो measure करता है length को, that is L is equal to L0 multiply by 1 minus v square over c। अब ये 1 माइनस वी स्क्वायर और सी स्क्वायर ये सेम क्वांटिटी है जिसमें स्पीड ऑफ लाइट जो है हमें पता है द स्पीड ऑफ लाइट इज ऑलवेज ग्रेटर देन द रिलेटिव मोशन। ठीक है, तो उस लिहाज से
ये वाली जो आपकी क्वांटिटी है इट विल ऑलवेज रिमेन लेस देन वन। अब अगर लेस देन वन रहेगी, ये क्यों लेस देन वन रहेगी? क्योंकि relative motion of the observer is much much less than the c. So ये जो क्वांटिटी है हमारी, ये क्वांटिटी इट विल रिमेन लेस देन वन। अगर ये लेस देन वन होगी तब हम कहेंगे कि आपका ये जो लेंथ वो मेजर कर रहा है, द लेंथ इज मेजर्ड स्मॉलर। ठीक है, अब ये जो लेस देन वन होगी इसका मतलब मीन्स कोई फ्रैक्शनल वैल्यू होगी। अब फ्रैक्शन से डिवाइड करोगे तो क्या होगा, इसकी वैल्यू जो होगी वो स्मॉल हो जाएगी। अगर कंसीडर करते फॉर इंस्टेंस हम कंसीडर करते लेस देन वन को वैल्यू ये 0.5 है। 0.5 क्या होता है, 1 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो उस लिहाज से L the length measured the length measured by the observer which is in motion is equal to 1 L not divided by 2। ठीक है, अब ये देखिए किस रिलेशन से आपको पता चल रहा है कि अगर इसको थोड़ा सा अदर वे में देखें तो L नॉट इज इक्वल टू ट्वाइस द लेंथ measured by the observer which is in relative motion। ठीक है, इसको इस इफेक्ट को हम कहेंगे लेंथ कॉन्ट्रैक्शन। नेक्स्ट क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी इज द मास। जब ऑब्जर्व किया गया इन relative frame of reference mass quantity, mass of an object जो कि हम कंसिडर करते थे अकॉर्डिंग टू द क्लासिकल फिजिक्स कि ये भी एक कांस्टेंट क्वांटिटी है। क्लासिकल मैकेनिक्स में हम कंसिडर करते थे मास की वैल्यू चेंज नहीं होती, आइदर बॉडी मूव करे या एट द स्टेट ऑफ रेस्ट ले, हम मास की वही सेम क्वांटिटी एम ही कंसिडर करते थे, उसकी वैल्यू में चेंज नहीं आता। लेकिन अकॉर्डिंग टू द स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी वी सी दैट द मास also varies, इसकी क्वांटिटी वेरी करती है। अगर ऑब्जर्वर एट द स्टेट ऑफ रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू द इनिशियल फेज वो मेजर करता है मास की क्वांटिटी इक्वल टू एम नॉट, और जबकि एक जो मोशन में है वो मेजर करता है इट्स वैल्यू टू बी एम, और एम की वैल्यू वेरिएशन से हम ये देखते हैं उसका रिलेशन जो एक्सपेरिमेंट की परफॉर्म करके डिटरमिन किया गया दैट वाज इक्वल टू एम नॉट डिवाइडेड बाय 1 माइनस वी स्क्वायर। दिस इट शोज दैट कि मास इंक्रीज करता है जब ऑब्जर्वर एट रिलेटिव स्पीड से मूव करेगा, तो मास जो वो मेजर करेगा वो इंक्रीज होगा, वो ज्यादा होगा एज कंपेयर टू द मास मेजर्ड बाय द ऑब्जर्वर व्हिच इज एट द स्टेट ऑफ रेस्ट। ठीक है, इसका मतलब है कि जब हम कंसिडर करते हैं कि v, अब ये जो है इंक्रीज, इसमें एक और हम कंसिडर करते हैं कि ये जो वेलोसिटी है एक बॉडी जब मूव करती है एक हाई स्पीड पर, हाई स्पीड मच हाई स्पीड और ये अप्रोचेस टू सी, यानी सी इज द मैक्सिमम स्पीड ऑफ द लाइट कांस्टेंट वन, जब वो अप्रोच करती है, ठीक है, तब v ओवर c का जो क्वांटिटी है यहाँ पे देखिए इट अप्रोचेस टू वन। ठीक है, जब ये देखो ये प्रोसेस होगी, अगर हम कहेंगे अप्रॉक्सीमेटली ये थी, ऑब्वियसली ये नहीं हो सकती, तो ये हम कहेंगे अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू वन। अगर ये इक्वल टू वन होगा तो उसका मतलब क्या है, आपकी ये क्वांटिटी इक्वल टू जीरो हो जाएगी, और जब इसके डिनोमिनेटर में जीरो आएगा तो मास क्या हो जाएगा, बिकम इनफाइनाइट। सो एन इनफाइनाइट मास would require an infinite force accelerating. Because infinite forces are not available, hence an object cannot be accelerated to the speed of light in free space. इसलिए हम ये कंसिडर करते हैं कि कोई भी बॉडी, सेकेंड पॉस्टुलेट को ये आइडेंटिफाई करता है कि कोई भी बॉडी विद द स्पीड ऑफ लाइट मूव नहीं कर सकती। अगर वो स्पीड ऑफ लाइट से मूव करेगी तो उसको मूव करने के लिए, एक्सेलरेट करने के लिए इनफाइनाइट फोर्स रिक्वायर्ड है, और इनफाइनाइट फोर्स अवेलेबल नहीं है। In our daily, everyday life, we deal with extremely small speeds compared to the speed of light. Even the Earth's orbital speed is only 30 किलोमीटर पर। अभी डिफरेंट स्पीड नहीं है, आप डेली लाइफ में देखते हैं कि अकॉर्डिंग टू न्यूटन और डिफरेंट रिलेशन में कि आपकी रिलेटिविस्टिक इफेक्ट्स को प्रोमिनेंट किया जाता है जब हम एक्सपेरिमेंटल परफॉर्म करते हैं बाय यूजिंग द आइंस्टाइन इक्वेशन कि जब रिलेटिव स्पीड होगी एक
स्टेट है जो स्टेट ऑफ रेस्ट है, जब बॉडी एट द स्टेट ऑफ मोशन होगी और विद रिलेटिव मोशन होगी, तो उसमें ये जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं ये कांस्टेंट नहीं रहती, इनकी वैल्यू चेंज करती है। लेकिन irrespective of the relative motion, the speed of light is a universal constant. Will remain constant. It will remain constant. Now, the last thing कि ये आपने जब कर दिया कि हम कभी भी कोई मैथ नहीं क्योंकि इनफाइनाइट कोर्स है। नाउ तो हम इसमें रिजल्ट ये अब एनर्जी और मैथ रिलेशन को देखें जो इन पोस्टुलेट से डिटरमिन किया गया कि एनर्जी मैथ रिलेशन बेस्ड ऑन द स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कि मैथ और एनर्जी का डिफरेंट रिलेशन है कि इंटर कन्वर्टेबल है। आइंस्टाइन की थ्योरी कहती है कि एनर्जी एंड mass are interconvertible, that is E is equal to mc square. Mass depends on the speed of the object. At the state of rest अगर हम कंसीडर करते हैं कि स्पीड ऑफ mass जो है वो m नॉट है और एनर्जी उसकी E नॉट है, तो ये E नॉट इक्वल टू m नॉट स्क्वायर c स्क्वायर इसकी वैल्यू है when the objective observer is at the state of rest with respect to the initial frame of reference. लेकिन अगर कंसीडर करते हैं कि आपका जो ऑब्जर्वर है वो रिलेटिव मोशन में, अब वो रिलेटिव मोशन में है तो क्या होगा, उसकी रिलेटिव मोशन के लिहाज से एनर्जी विल बी एम नॉट सी स्क्वायर। सी इज अ यूनिवर्सल कांस्टेंट, इट विल रिमेन द सेम। हम अगर डिटरमिन करें अगर डिफरेंस इसमें से डिटरमिन करें इन ऑर्डर टू डिटरमिन द रिस्ट मास एनर्जी, कि रिस्ट मास एनर्जी उसकी क्या होगी कि डिफरेंस लेते हैं ये जब वो एट द स्टेट ऑफ मोशन में है और ये क्वांटिटी जब वो एट द स्टेट ऑफ रेस्ट है, तो इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो आपके पास काइनेटिक एनर्जी आएगी। काइनेटिक एनर्जी, सो द चेंज इन एनर्जी, द चेंज इन एनर्जी विल बी, ये डेल ई क्या है, दैट इज दिस इज डेल ई। डेल ई दिस इज काइनेटिक एनर्जी, द डिफरेंस इन द काइनेटिक एनर्जी कि एक बॉडी एट द स्टेट ऑफ रेस्ट है, दूसरी बॉडी एट स्टेट ऑफ मोशन है विद रिस्पेक्ट टू द रेफरेंस इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो उसके लिहाज से हाँ ये फॉर्मूला है, बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला यू कैन डिटरमिन द रेस्ट मास एनर्जी। सी की क्वांटिटी क्योंकि बहुत लार्ज है तो इसका मतलब है दिस इंप्लाइज कि अगर ये क्वांटिटी बहुत लार्ज है तो चेंज इन मास is very small. Small change in mass requires very large changes in energy. Energy को change करने के लिए एक small सा change, measurable, small इतना small कि measurable भी नहीं होगा change ये आपके नहीं। और however energy and mass changes in nuclear reactions are found to be exactly accordance with the above, यानी जितने भी हम फिजिकल प्रोसेस पढ़ते हैं उनमें ये प्रिंसिपल्स को हम कंसीडर करते हैं। अब रिजल्ट स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को जब स्टार नेविगेशन के लिए यूज किया गया, नेविगेशन सिस्टम में यूटिलाइज किया गया, तो हम इससे डिटरमिन क्या कर सकते हैं, बेनिफिट क्या हुआ कि यू कैन डिटरमिन द स्पीड ऑफ द स्टार एंड द स्पीड ऑफ द एयरक्राफ्ट एनीवेयर व्हिच इज लाइंग इन द अर्थ, और विद एक्यूरेसी आप उसको मेजर कर सकते हैं विदाउट टू डिटरमिन टू बी 2 सेंटीमीटर। अगर कंसीडर करते हैं डिटरमिन टू एन एक्यूरेसी अबाउट 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड इफ रिलेटिवली इफेक्ट्स आर नॉट टेकन इनटू अकाउंट, स्पीड कैलकुलेटेड वुड बी 20 मीटर पर सेकेंड। यानी आप देखिए कितनी एक्यूरेसी हो गई बाय अप्लाइंग द स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी यू कैन डिटरमिन द पोजीशन, द स्पीड ऑफ a star and aircraft while you are observing at present at Earth. After an hour's flight of an aircraft, its location can be predicted to about 50 meters with relativistic effect and 720 meters without using a relativistic effect. यानी देखिए कि relativistic effect से आप उसको किस तरह से प्रिडिक्ट कर सकते हैं, कितना डिफरेंस आ जाता है कि जब आपको बाय यूटिलाइजिंग द स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आपकी एक्यूरेसी ज़्यादा बेटर हो जाती है, आप विद मोर एक्यूरेसी डिटरमिन कर सकती हैं डिफरेंट इफेक्ट्स को। Now the next topic is black body radiation. Black body इस कंसीडर करें एक बॉक्स है जो कंप्लीटली
ब्लैक किया हुआ है सो दैट इट ब्लैक कलर का क्या होता है, इट एब्सॉर्ब मैक्सिमम हीट। ठीक है, व्हेन अ बॉडी इज हीटेड इट इमिट्स रेडिएशन। इमिट रेडिएशन के कि जब आपने उसको ब्लैक किया हुआ पूरा कर वो मैक्सिमम एब्सॉर्ब करेगा आउटसाइड से सनलाइट को एब्जॉर्ब करेगा और वो रेडिएशन जो उसके अंदर एब्जॉर्ब होनी है वो इमिट करेगा। देन ए बॉडी इज हीटेड। अब ये हीटिंग थ्रू सन भी हो सकता है, सनलाइट से भी हीट करवाया जा सकता है। और ये हीटिंग किस तरह से हो सकती है कि आप वैसे कोई एक्सटर्नल हीट प्रोवाइड करें ब्लैक बॉडी तो वो क्योंकि ब्लैक है इसलिए वो परफेक्टली एब्जॉर्ब करेगी रेडिएशन। द नेचर ऑफ रेडिएशन डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर। At low temperature, a body emits radiation which is principally of longer wavelength in the invisible infrared region. यानी लो टेम्परेचर के ऊपर जो बॉडी इमिट्स करती है रेडिएशन वो लॉन्गर वेवलेंथ की होती है और वो विजिबल रीजन पे लाई नहीं करती, जबकि हाई में शॉर्टर वेवलेंथ की रेडिएशन होती है और वो विजिबल रीजन पे लाई करती है और रीजन पे आप देख सकते हैं। Furthermore, the amount of emitted radiation is different for different wavelengths. It is of interest to see how the energy is distributed among different wavelengths at various temperatures. For example, रेडिएशन आप कितना देखिए, एक बॉडी जब हीट करती है, जब बॉडी हीट होती जाती है तो उसका कलर चेंज होता है। इसमें एग्जांपल दी गई है प्लैटिनम वायर की जिसको हीट किया गया, इसको हीट किया गया 500 सेंटीग्रेड का तो वो डल रेड। अब इसमें ये जो डल रेड कलर नजर आ रहा है इट मीन्स दैट इट इज इमिटिंग रेडिएशन इन द विजिबल रीजन। लेस देन 500 इसका कलर नजर नहीं आ रहा था, कुछ ज्यादा कलर नजर नहीं आ रहा था, मीन्स जो रेडिएशन वो इमिट करेगी वो विजिबल रीजन में लाएगी। Changes to cherry red at 900 centigrade, becomes orange red at 1100 centigrade, yellow at 1300 centigrade, and finally white at 1600. अभी आप देख सकते हैं कि डिफरेंट टेम्परेचर पे डिफरेंट कलर्स होता है, डिफरेंट कलर्स इंडिकेट कर रहे हैं वेवलेंथ को। और सबसे ज्यादा कि जितनी ज्यादा वेवलेंथ सॉरी टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है वेवलेंथ शॉर्टन होती जा रही है। यानी रेड के मुकाबले में व्हाइट को देखिए, येलो को देखिए, इट इज शॉर्टर एंड व्हाइट इज मोर शॉर्टर। तो शॉर्टर वेवलेंथ हो रही है और वो विजिबल रीजन में आपको नजर। दिस शोज दैट एज द टेम्परेचर इज इंक्रीज द रेडिएशन बिकम्स रिचर इन शॉर्टर वेवलेंथ। यानी जितना टेम्परेचर इंक्रीज करता जाएगा वेवलेंथ डिक्रीज करती जा रही है। इसका मतलब ये है कि टेम्परेचर का और वेवलेंथ का इनवर्स। In order to understand the distribution of radiation emitted from a hot body, we consider a non-reflecting object such as a solid that has a hollow cavity within. अभी कंसिडर कर रहे हैं कि आपने एक ब्लैक बॉडी रेडिएशन को कंसिडर करना है तो एक सॉलिड की बॉडी है, इस सॉलिड हॉलो कैविटी के अंदर हम कंसिडर करते हैं एक होल। इस होल से ये जो स्मॉल होल आपने बताया ये आपको इंटरनल कैविटी शो हो रहा है, एक्चुअल में सिर्फ एक होल यहाँ पे लाई कर रहा है। इस होल से रेडिएशन एंटर भी करेंगी, यानी जो रेडिएशन एंटर करेंगी बॉडी इस तरह से परफेक्टली अंदर से ब्लैकेंड है कि जो रेडिएशन उसके अंदर एंटर करेंगी वो रिफ्लेक्ट होकर उसकी वॉल्स के साथ कंप्लीटली एब्सॉर्ब हो जाती है एंड देयर इज नो वे टू एस्केप फ्रॉम दैट। ठीक है, ब्लैकेंड इस तरह से किया कि वो गुड एब्सॉर्बर बनता है और बैड रिफ्लेक्टर बनता है। The small hole appears black because the radiation that enters is reflected from the inside wall many times and is partly absorbed at each reflection until none remains. यानी जो each reflection from the walls होगी वो partly उसमें एब्जॉर्ब होते हैं। यहाँ तक कि तमाम बार रिफ्लेक्ट मल्टीपल टाइम रिफ्लेक्ट करने के बाद वो कंप्लीटली एब्जॉर्ब होते हैं। तो हम ये कंसिडर करते हैं कि ये ब्लैक बॉडी जो है इट इज एन आइडियल अब्सॉर्बर और आइडियल रेडिएटर। अब इसमें जब एब्जॉर्ब हो गई रेडिएशन वो इमिट भी करेगा इसी कैविटी इसी होल के। इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम को अगर हम कंसिडर कर लें कि ल्यूमिनर और फिजिक्स ये दो हमारे जो साइंटिस्ट थे उन्होंने मेजर किया इंटेंसिटी ऑफ द इमिटेड लाइट विद वेवलेंथ रेडिएटेड फ्रॉम द ब्लैक बॉडी एट डिफरेंट टेम्परेचर। अब इस रेडिएशन में आप ये कंसिडर ये देखिए आपके पास ये इंटेंसिटी और वेवलेंथ। टेम्परेचर के लिहाज से देखिए वेवलेंथ जो है वो उस
उसकी वैल्यू देखिए, इंटेंसिटी की वैल्यू डिक्रीज करेगी। जितना ज़्यादा हम कंसिडर करते हैं, जितनी ज़्यादा इसके अंदर इंटेंसिटी जो है वो इंक्रीज कर रही है, वो किस लिए कर रही है, जब टेम्परेचर ज़्यादा एट इस कर्व से हमें इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या मिलते हैं, एट ए गिवन टेम्परेचर, at a given temperature, the energy is not uniformly distributed in the radiation spectrum of the body. At a given temperature, ये देखिए किसी भी टेम्परेचर में देखिए ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, इसकी वैल्यू इंक्रीज करती है, एक मैक्सिमम लिमिट तक जाती है और उसके बाद ये डिक्रीज कर रही है। Second, at a given temperature T, the emitted energy has maximum value for a certain wavelength, which is known as maximum wavelength, यानी हरे के लिए वेवलेंथ एक मैक्सिमम है जिसमें मैक्सिमम इंटेंसिटी की आपको रेडिएशन मिलती है। इस इंटेंसिटी के बाद रेडिएशन की इंटेंसिटी जो है वो डिक्रीज करती है। और इसमें हम ये देखते हैं कि ये जो है वो ये जो वेवलेंथ वो मैक्सिमम वेवलेंथ को डिटरमिन करता है कि सर्टेन उसकी मैक्सिमम वेवलेंथ। अब इसकी ये जो आपको डॉटेड लाइन नजर आ रही है ये उसकी वेवलेंथ बताती है, मैक्सिमम वेवलेंथ, कि जब आपको इनर्टेड एनर्जी होगी उसकी मैक्सिमम वैल्यू आपको कहाँ मिलेगी। So these values when calculated by a scientist Wien, उसमें वाइन कांस्टेंट के साथ इसको डिटरमिन किया, तो ये आपका रिलेशन जो बनता है कि मैक्सिमम वेवलेंथ इज मल्टीप्लाई बाय द टेम्परेचर, ये क्वांटिटी जो है वो रिमेन्स कांस्टेंट होती है, ठीक है। और इसकी कांस्टेंट will be equal to the Wien's constant, और Wien's constant की वैल्यू was measured to be 2.9 into 10 to the power minus 3 मीटर पर केल्विन, ठीक है। अब जब ये इंक्रीज हम ये कंसीडर करते हैं, नेक्स्ट वो क्या कहते हैं कि this equation means that as T increases, lambda maximum shifts to shorter wave, क्योंकि देखो प्रोडक्ट है टेम्परेचर और वेवलेंथ का प्रोडक्ट है, उसको कांस्टेंट रहना है। अगर उसको कांस्टेंट रहना है, उसको कांस्टेंट रहने के लिए क्या रिक्वायर्ड है कि इन दोनों में अगर एक क्वांटिटी इंक्रीज कर रही है तो दूसरी क्वांटिटी डिक्रीज करेगी, तभी आपको वो कांस्टेंट कांस्टेंट है। For all wavelengths, an increase in temperature causes an increase in energy emission. The radiation intensity increases with increase in wavelength, and at a particular wavelength, it has a maximum. If for all the wavelengths, an increase in temperature causes an increase in energy. जितनी ज़्यादा, अभी आप डायग्राम से देखिए, जितना ज़्यादा टेम्परेचर हो उतनी ज़्यादा इंटेंसिटी की रेडिएशन होगी, ठीक है, उतनी ही ज़्यादा इंटेंसिटी की इंटेंस रेडिएशन उसमें से इमिट होगी और उतनी ज़्यादा आपको मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी, ठीक है। और इसमें क्या है, रेडिएशन इंटेंसिटी इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन वेवलेंथ एंड एट अ पर्टिकुलर मैक्सिमम वैल्यू where for the increase in wavelength the intensity, यानी इसकी बात हम कंसीडर करते हैं कि जो टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं उससे इंटेंसिटी वैल्यू इंक्रीज कर रही है, लेकिन इस मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द वेवलेंथ को रीच करने के बाद उसकी इंटेंसिटी वैल्यू डिक्रीज करती है। The fourth point, the area under each curve represents the total energy radiated per second per square meter over all wavelength at a particular time. It is found that area is directly proportional to the 4th power of the Kelvin temperature.